Good afternoon. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, and also if you could confirm if the PPT is visible to you all. Yes, ma'am, visible. Right, thank you. Okay, so I have a couple of you, I think जिनका already fix हो ही चुका है college. ठीक है. See, so though I was hoping for some more participation here because I thought most of you, to bullet batch say, those have gone back home. So I thought let's keep an online session so that आप अपने घर में रह के भी इसको join कर सकते हो. And also meanwhile your anybody, your parents or anyone who's been part of decision making at your home could be a party to the session. But nonetheless, so we have around 22 of you here. And I guess सबसे बड़ा filtration यही होता है कि someone who's concerned, who's is attending this session. And then because I wanted to address all the queries at one go, and then of course one on one जो personal है, that could have been addressed. So here I'm precisely going to talk about, once we are done with CLAT and AILET, what next do we have ahead and what are the things that we can look forward. So what I'll suggest, let me let me complete what I'm trying to say here, what I'm trying to convey to you, and then post that we can take a Q&A kind of session. Is that okay? Yes, ma'am. राइट. सो आपकी कोई क्वेरीज हो आप नोट डाउन कर सकते हो साथ में. एंड में विल जस्ट गो विद द Q&A. ओके. सो ऑफ कोर्स वी नो द क्लैट का जो टाइमलाइंस है, रिजल्ट आ चुका है 23rd को, काउंसलिंग भी 28 से स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है. आप में से कईयों को काउंसलिंग कॉल दिख रहा होगा यदि आप अपने कंसोर्शियम के अकाउंट में लॉग इन करते हैं. वहां पे आपको आया होगा कि जिसको भी आया है कि काउंसलिंग फी पे करने के लिए ऑप्शन है. मेरा यहाँ पे ये सजेशन है कि आप पे कर दीजिए बिकॉज फॉर अ जनरल कैंडिडेट द फी इज ओनली 30,000 एंड फॉर अ कैटेगरी स्टूडेंट इट्स 20,000. सो एंड दिस इज कम्प्लीटली रिफंडेबल. सो इफ एट ऑल आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होती है थ्रू कंसोर्शियम, आपके ये पैसे वापस आ जाएंगे. इट्स जस्ट दैट दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक 4 to 5 months. एंड तो 4 to 5 months के लिए ये पैसे काइंड ऑफ आप अपने अकाउंट से उठा के दूसरे अकाउंट में कर रहे हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस इन केस यू डोंट गेट अ यूनिवर्सिटी. In case and if you get a university through consortium, then this money is going to be adjusted in your university fees. So and this year, lot of factors or parameters would come into the play. because आपने देखा होगा कंसोर्शियम ने जो टाइमलाइन बनाई है काउंसलिंग की, 2 लिस्ट आ रही हैं जनवरी में और फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस एक तरह से हॉल्ट पे है फॉर द नेक्स्ट 4 months. एंड देन ये पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा आपका मई एंड में जाके 20th मई के आसपास. क्योंकि तब तक देर आर स्टूडेंट्स हु वुड बी राइटिंग अदर एग्जाम्स आल्सो. देर आर स्टूडेंट्स जो उनको 12th बोर्ड भी देना है. there could be people who altogether move to some different thing. So the consortium is anticipating कि काफी हो सकता है numbers, I think इधर से उधर हों. So that might, we really don't know. जो लास्ट ईयर तक हम कह सकते थे कि इस स्टेट रैंक तक हो सकता है, इस बार बहुत सारे अननोन फैक्टर्स होंगे जो ये सब डिसाइड करेंगे. So यदि आपके अकाउंट में काउंसलिंग कॉल है, my suggestion, please go ahead and pay the registration fees and wait. And then उसको पे करके आप साइड में रख दो. That does not mean कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे करने का मतलब ये हो गया कि अब हमारी क्लैट में चांसेस हैं. No, it does not mean that. ठीक है. But we would it should be like there's no harm in evaluating your chances. बट ये सब पता चलेगा मई जून में जाके, तो तब तक आप बैठे नहीं रह सकते हो इसके सहारे.
ठीक है। सो हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल आप इस बीच रेडी कर लें। और फर्स्ट अलॉटमेंट में 18 जन को आ रही है, सेकेंड 27 जन को आ रही है, और उसके बाद मई जून में है। सो आई ऑल आई वांटेड टू से हियर, इफ यू हैव अ कॉल, गो अहेड एंड पे द फी। नाउ इफ वी गो टू नॉन क्लैट एग्जाम्स, जो मेजर नॉन क्लैट एग्जाम्स हैं हमारे पास, SLAT, that is for Symbiosis, NLAT for Narsi Monji, MHCT, CUET, one for the Christ University, one for the Central University wala, and LSAT. So these are the major law entrance exams. I have taken them in detail, each one of them in one by in complete detail. So starting with the Symbiosis law admission test, जिसकी dates आ चुकी हैं 6th and 14th May. Then ये दो attempts हैं, so it does not mean that you will have to choose one. In fact, you can write both, and आपका जो दोनों का best score होगा वो consider होगा इसमें, ठीक है। So I would suggest you can go for the both. 6th के एग्जाम में आपको पता चल जाएगा, कुछ और तैयारी करनी है, ये another 7-8 days to work upon, ठीक है। I'm not getting into the details of entrance exam, that we would be discussing when we would start classes कि क्या section है, क्या तैयारी करनी है. Here I'm only going to talk about the exams and what are your options ahead. Last date to apply is 12th April. There are 4 campuses of Symbiosis Law Schools: Pune, Noida, Hyderabad, and Nagpur. This is also in order of establishment and also in the order in which they should be preferred. As in, SLS Pune is probably the best campus of all, out of all these 4, followed by Noida, then Hyderabad, and then Nagpur. Now, unlike CLAT and ALET, जहाँ पे आपका law school is fixed only on the basis of your written exam, Symbiosis Law School का जो admission है वो twofold है. So your first job is to write the entrance exam, and then you will be, based on your entrance exam ka score, you will be shortlisted for the second round, which is PI and VAT. Now PI is personal interview and VAT expands to written ability test. So written ability test is nothing but kind of, यदि मैं बहुत easy शब्दों में कहूँ तो this is like essay writing. So ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें अलग से कुछ पढ़ना है, मोस्टली इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरल अफेयर्स के टॉपिक होते हैं. सो आपका रिटन इंग्लिश पे कमांड चेक होता है, हाउ आर यू आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स, ऐसे हैज अ सर्टेन फ्लो. इट्स तो आपने स्कूल में बहुत लिखा होगा, तो वो वाली चीज वैट में होती है, ठीक है. और जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें रिटन एग्जाम का वेटेज 50% है, पीआई का 30% है, एंड वैट का 20% है. आफ्टर दिस फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है फॉर दीज 4 कैंपसेस. रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट 24 में अनाउंस्ड है, एंड वेबसाइट जहाँ पे आपको सब चीज मिलेगा डिटेल्स, या जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो, is settest.org, and yes, registration have already started, so you can go ahead and register yourself for Symbiosis Law Schools. Now, as far as number of seats are concerned, all the 4 campuses have good, roughly, if you look at, Pune has 300, Noida again has 300, Hyderabad is 240, and Nagpur is 240. So all these 4 law schools put together are 1080 seats. 1080 seats हैं इन 4 law schools में. बट क्लैट की तरह ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ स्लैट का फॉर्म भरना पड़ेगा. आपको स्लैट का फॉर्म भरने के साथ साथ अब यहाँ पे 8 प्रोग्राम है. देयर आर 4 कैंपसेस, ईच कैंपस हैज 2 प्रोग्राम्स. तो आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब आप चाहते हो आपको SLS पुणे के BA LLB कोर्स के लिए कंसिडर किया जाए, तो आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली. And when you're applying for BA LLB, that does not mean you will be considered for BB LLB also. So if you want कि आपको पुणे के दोनों BA LLB and BB LLB के में एडमिशन दोनों में आप इंटरेस्टेड हो, तो you will have to apply separately. So basically 4 into 2, 8 combinations हैं या 8 different programs हैं in which you can apply.
ओके। एंड यदि आपने अप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ स्लैट की फीस दी, आपका बहुत हाई स्कोर भी आ गया, आपने एक भी प्रोग्राम को अप्लाई नहीं किया है, तो आपको सेकेंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा. So application to SLAT is one thing, and then applying to these programs, and that too BA has to be applied separately, BBA has to be applied separately for each campus. Okay, so keep that in mind. And जरूरी नहीं है कि जो प्रोग्राम्स का एप्लीकेशन है वो आपको आज करना हो. अभी आप चाहो तो सिर्फ स्लैट के लिए अप्लाई करो, प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई, लास्ट डेट जो 12 अप्रैल है रजिस्ट्रेशन की, उसके पहले तक आपको करना होगा. ठीक है, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे आप उसी प्रोग्राम के पीआई वैट के लिए कंसिडर किए जाओगे. बाद में ये आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते वंस स्लैट हैज बीन कंडक्टेड. सो इस चीज का ध्यान रखना. फिर स्लैट में कितना भी हाई स्कोर ले आओ और आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा. सो जस्ट दैट थिंग एज अ नोट. Then the second exam that we have is NLAT, Narsi Monji Law Admission Test. Total Narsi Monji group has 7 campuses. Exam registration window has already been opened from 1st December to 21st May है. Attempt मतलब जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं वो 4th Jan से 31st May तक के बीच है. And this will be conducted online at test centers. Also, Symbiosis is also an online exams. So now most of the exams जो आपके आ रहे हैं, they are online, not offline. They are online exams. Now, Narsi Monji allow you maximum of 3 attempts, 1 main attempt plus 2 retakes. So my suggestion could be like अभी जब आप classes start करते हैं तो आप एक attempt around March में ले सकते हैं या अप्रैल में ले सकते हैं. और यदि आपको अच्छा लगता है कि आई कैन बेटर दिस अटेम्प्ट या इसमें और गुंजाइश है कि मैं थोड़ा और पढ़ के इसको अच्छा कर सकते हैं, तो आप एक, क्योंकि इसकी जो डेट्स है देने की वो 31st मई तक है, तो आप एक और रिटेक ले सकते हो. क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के मार्क्स कंसिडर होंगे, आपके जितने भी अटेम्प्ट है उनमें से हाईएस्ट मार्क्स कंसिडर होंगे जिस भी अटेम्प्ट में आपके आए हैं. रिजल्ट पूरे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद जून में आएगा. द वेबसाइट इज nmimslat.in. there you can go and refer to the further details regarding to this exam. Let me give you a brief about the seats as well. 7 campuses is like Mumbai, Navi Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Indore, Dhule, that's in Maharashtra, and Chandigarh. Again, each campus offering 2 kinds of program, BA LLB and BBA LLB here. Maximum seats are with Mumbai, and of course, definitely NM Mumbai, by the virtue of being in Mumbai, is a good choice. And of course, Navi Mumbai. LSAT India, okay, it is a exact replication of LSAT which is conducted in US. And but thing is US में आप लॉ 12th के बाद नहीं कर सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन या ग्रेड स्कूल के बाद आप लॉ कर सकते हैं. तब यू राइट एन एग्जाम कॉल LSAT, एंड LSAT इंडिया उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है. इट टेस्ट योर रीडिंग, critical reasoning skills. So you would not find any maths or legal or GK in this particular exam. It is only your critical reasoning and reading comprehension and bit of analytical reasoning जो इस एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, ये भी एक ऑनलाइन एग्जाम है, 2 बार होगा. I'll just share the dates as well. The website is discoverlaw.in. The official website through which you can register for LSAT India is discoverlaw.in. Okay. The major colleges, of course, LSAT India या LSAT को start करने का जो credit है वो इंडिया में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत को जाता है. दिस इज द इंस्टीट्यूट which has actually brought this LSAT to the current format, which is LSAT India. And there are a couple of more private universities like Shobit University, ISBR, Bangalore, Geetam in Vizag, Shala University. These all, Indore Institute of Law, SRM, they all consider LSAT score for admission into their 5-year law program. Now, as far as deadlines are concerned, one attempt of LSAT is happening on 22nd January here, for which you can apply till 11th January. Okay.
एंड देयर इज अ जून अटेम्प्ट जिसके लिए लास्ट डेट 26 मई है, और जून अटेम्प्ट होगा 8 से 11 जून तक। ठीक है, सो अगेन 2 बार आप दे सकते हैं इस एग्जाम को, और ये आपका चॉइस रहेगा, आपको अभी देना है या आप जून में देना चाहते हैं। Then Christ University, it's like famous name in Bangalore, originally from Bangalore. Now they have 3 campuses: Bangalore, Lavasa, and Delhi NCR. Precisely, to be precise, like it's in Ghaziabad. Applications के भी बहुत ज्यादा information नहीं है वेबसाइट पे। अभी जो सिर्फ डेट मिली है वो 3 जैन मुझे दिख रही थी। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में 3 राउंड्स हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स जो अगेन एक ऑनलाइन है, माइक्रो प्रेजेंटेशन, ओके, सो देयर बी यूजुअली कोई टॉपिक मिलेगा आपको जिसपे आपको 90 सेकेंड्स मतलब 1.5 मिनट बोलना है। सो दिस इज लाइक एक्सटेम्पोरे, यू नो, द जैसे आपने स्कूल में किया हुआ है, तो एक्सटेम्पोरे है, टॉपिक है, ऑन द स्पॉट बोलना है आपको। मोस्टली टॉपिक करंट अफेयर्स या बहुत जनरल टॉपिक्स होते हैं। देन पर्सनल इंटरव्यू, एंड इन तीनों के बेसिस पे फाइनल आपको एडमिशन मिलता है। एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी यूजुअली 3 एडमिशन राउंड्स करते हैं, 3 से 4 एडमिशन राउंड्स करते हैं। लास्ट ईयर इनके 4 थे, पर अभी इस साल की डेट्स अभी अनाउंस की नहीं है, दे आर लाइक स्लाइटली लेट, अदरवाइज इनका दिसंबर में ही सब कुछ आ जाता था। बट एज यू नो विल गेट टू नो, बट एज एन यू नो एज एन हिस्ट्री ये सिर्फ एक बार नहीं करते, राउंड 2 से 3 बार इनका होता है। ठीक है, तो अभी डिटेल्स और आएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, एंड द वेबसाइट इज christuniversity.in. MHCT 5-year law, this is conducted by Maharashtra government का स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, एंड ये इसके स्कोर से आप सिर्फ महाराष्ट्र के विद इन जो कॉलेज 5-year लॉ ऑफर कर रहे हैं उनके लिए कंसिडर होंगे। तो MHCT लॉ का स्कोर आउटसाइड महाराष्ट्र नहीं कंसिडर होगा। इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई अपडेट नहीं है अभी इसके बारे में, क्योंकि अभी भी वेबसाइट पे पिछले साल का ही स्कोर कार्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट mahacet.org, एंड MHCT इज समथिंग, क्योंकि इट हैज अगेन इसका जो हिस्ट्री रहा है, काफी डिलेड एग्जाम होते हैं इसके, काउंसलिंग बहुत डिलेड होती है। सो MHCT आपको देना है तो दीजिए, बट इस पे आप रिलाय मत करो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो MHCT में ऑलरेडी हम 15% सीट्स के लिए एलिजिबल है बस आउटसाइड महाराष्ट्र कैटेगरी में। The rest 85% of the seats are for Maharashtra domicile. Okay. और दूसरा ये इतना डिलेड होता है, यदि हम सिर्फ इसके सहारे बैठे रह गए और मान लीजिए इट डजंट वर्क आउट टू आवर फेवर, देन तब तक बाकी जगह कुछ बचेगा नहीं। तो बाकी एग्जाम्स दो, उनपे उनका पूरा प्रोसेस करो। MHCT एज एंड व्हेन डेट्स आती हैं, होता है, कुछ अच्छा मिलता है, देन टेक अ कॉल कि व्हाट आई नीड टू डू। ओके, बट डोंट सिट ओनली वेटिंग फॉर MHCT. Now, there are some very good colleges with MHCT. Of course, Government Law College, GLC Mumbai is the oldest law college in Asia. It has celebrated 150 years, and who's who in the legal fraternity is from this particular college, starting from the first CJIF India, H.J. Kania, Nani Palkiwala. I think that's a name to reckon with. Lal Kish Advani, Ram Jethmalani, P.N. Bhagwati is the one who's credited with introducing PIL in India, and I'm sure since you have studied law for kind of 6 months or something, you're aware Justice P.N. Bhagwati is. Piyush Goyal, Cyril Shroff, one of the biggest law firm in India is Amarchand Mangaldas, and it has now split into 2, जिसको हम बोलते हैं CAM and SAM. So, you know, earlier this was one, अब ये 2 भाई थे, split हो गए, but Amarchand Mangaldas is the biggest law firm, biggest Indian law firm that we have. So Cyril Shroff handles the CAM, CAM, Cyril Amarchand Mangaldas, whereas his brother Shardul Amarchand Mangaldas, here's, you know, he handles SAM. So these are the people who have actually come out of this college.
And the next best opportunity that can come through MHCT is Indian Law Society, ILS Pune. Then there are a couple of good colleges in Mumbai, Praveen Gandhi, Rizvi. पुणे में अगेन नवलमल फिरोदिया है, जो शायद आप ऐसे नाम से रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. पुणे में काफी बड़ा एक फेमस ग्रुप है फर्ग्यूसन्स. तो ये फर्ग्यूसन ग्रुप का लॉ कॉलेज है. ठीक है. सो ये कुछ, क्योंकि यदि हम MHCT के थ्रू लॉ में जाने की सोच रहे हैं तो probably we are only looking at colleges of Mumbai and Pune. You would not be going into a college probably situated in Wardha, Amaravati और नागपुर. आप MHCT दे रहे हो तो बॉम्बे या पुणे के कॉलेज के लिए दे रहे हो, क्योंकि ये जगह का लोकेशनल एडवांटेज है. Other colleges that can be considered, of course, Nirma Ahmedabad. If you have CLAT rank like till 5,000, my recommendation form भर दो. अभी भी ओपन है. सिर्फ लास्ट डेट क्या है नहीं लिखा है. आज ही मैंने चेक किया है. लास्ट डेट के सामने सिर्फ डेडलाइन एक्सटेंडेड लिखा है. कब बंद होगा पता नहीं. पर अकेडमिकली निर्मा अहमदाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, मिलता है, और आपके पास कोई और चॉइस नहीं है या इससे बेहतर नहीं है तो निर्मा अहमदाबाद बिल्कुल एक जाने लायक कॉलेज है. 300 सीट है यहाँ पे, BA LLB एंड BB LLB मिला के. UPS Dehradun, again one of the old and renowned names in terms of fiber law in India. The only college to have a specified course on energy law, plus they have courses on specifically on civil law or criminal law or corporate law. So UPS Dehradun is definitely हम लॉ में ऐसे कॉलेजेस में जाने की कोशिश करो जिनका नाम सुना हुआ हो, जो those have been around for long, because then उनका alumni होता है which is working in law firms, which is working in courts, and that's going to support you. So UPS Dehradun is an older law school in terms of establishment, and they have a couple of very good niche courses. Then Delhi में एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर भी काफी सारे कॉलेजेस का 5 ईयर लॉ ऑफर करते हैं. एंड उसमें से दो जो नाम आप कंसिडर कर सकते हो जो वर्थ ज्वाइनिंग है, वो है विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, एंड यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ लॉ. ये दोनों कंसिडर किए जा सकते हैं. इसका निर्मा के लिए क्लैट स्कोर लगता है, GGS IPO के लिए भी क्लैट स्कोर लगता है, एंड अगेन ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है. सो आप 15% सीट्स के लिए ही एलिजिबल है एज आउटसाइडर्स. 85% seats are for Delhi domicile. Then IFIM Bangalore is a decent name to consider. Would take CLAT, LSAT scores. न्यू लॉ कॉलेज BBB पुणे, इनका भी अपना एग्जाम होता है, समवेयर जून में होगा. जैसे इंफॉर्मेशन आएगी आई विल लेट यू नो, बट अभी कोई अपडेट नहीं है. तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आप कंसिडर कर सकते हो इन एग्जाम्स के अलावा, यदि आप एक डिसेंट नाम सोच रहे हो जहां पे आप जाना चाहते हो, अपने अगले 5 साल स्पेंड करना चाहते हो. ठीक है. Now, before I move to options beyond law, I want to take a pause here for a minute and I want to understand your queries. Then I will also want to discuss what beyond law आप कुछ और चीजें देख सकते हो. Yes, open to no, I'm looking at the chat window. If you want to mention something in the chat window, or you can unmute yourself and speak. So any queries so far? कोई क्वेरी नहीं है किसी को? ओके, ठीक है. UPS Dehradun CLAT score, LSAT score, plus they have their own exam, which is called ULSAT. Okay.
So and in fact जब आप यूपीएस के लिए अप्लाई करते हो तो दे आस्क यू एग्जाम नॉन एग्जाम. माय सजेशन इज दैट जब हम एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो रैदर उनका एग्जाम लिख दो, क्योंकि मैंने नार्सी मोंजी के केस में भी देखा है कि दो नार्सी मोंजी भी कहते हैं कि वो अल्साट स्कोर लेते हैं, पर जो उनके अच्छे कैंपस है जैसे मुंबई या नवी मुंबई, उसकी वो मैक्सिमम सीट्स जो है अपने एग्जाम के थ्रू भरते हैं. तो यूपीएस के साथ भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम अप्लाई तो करना ही है, एज वेल राइट द एग्जाम. Rishma, fee structure for which particular college? I intend to discuss this in when you're coming for orientation. Right now, your thing is that ki write as many exams as possible. आपके पास ऑप्शंस और चॉइसेस तब आएंगी जब आप एग्जाम लिखते हैं, क्रैक करते हैं, एंड व्हेन यू हैव द फाइनल ऑफर लेटर विद यू और फाइनल सिलेक्शन लेटर विद यू, देन चूज कि अच्छा ठीक है अब क्या सब चीजें एज इन सिटी वाइज एज इन फी वाइज क्या मुझे सूट करेगा. Anyone else? Any other query? Guransh, exam pattern and everything I'm going to discuss in the orientation session. I've deliberately, I thought parents would be there, so I thought कि मैं academics की nitty-gritty में नहीं जाती हूँ. Let me just take this as only as an awareness session कि आप क्या क्या एग्जाम दे सकते हो अभी. That we would discuss and when we are going to start off our the classes. There I will get into detail of the exam pattern of each exam, what has been the trend in the previous years and everything. There's somebody called 1233. Please rename yourself or send me your name in the chat box. Either आप rename कर लो या आप अपना नाम मुझे chat box में भेज दो. I'll rename you. हाँ जी, और कोई किसी को कोई क्वेरी नहीं है? ओके हिमांशु, ठीक है. राइट, ठीक है, ठीक है. So now let me talk about, अच्छा, how many of you are here who feel जिनका मैथ्स अच्छा है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका मैथ्स जिनको लगता है ठीक है? खुशी, ओके. खुशी, एनलैट का एग्जाम डेट 4 जनवरी से आप दे सकते हैं 31 मई के बीच 3 बार. ओके, ठीक है. और कहीं who feels strongly for maths? ओके, सो बियॉन्ड लॉ यदि हम देखें, options beyond law, how many of you have heard of IPM program? How many of you have heard of IPM? Okay. यदि किसी का yes, it's an integrated course for MBA and जिस तरह लॉ में आपको पता है the number one, ये जो टॉप इंस्टीट्यूट्स की हम बात करते हैं वो नेशनल लॉ स्कूल्स होते हैं. जैसे हम इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में IITs की बात करते हैं या NITs की बात करते हैं, इसी तरह मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIMs, the one we have, like we have IIM Raipur. There are 19 IIMs in India right now. So they are the kind of, you can say, the epitome of management education in India. Okay. So out of those 19, 5 IIMs आज की डेट में
IPM प्रोग्राम चलाते हैं. IPM प्रोग्राम is integrated program in management where somebody can take admission right after class 12th. Okay, so I'm yeah, why you need to look at IPM or when can you look at IPM? यदि आप मैथ से कंफर्टेबल हो. आजकल डेट में काफी इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि कई बार लोग लॉ के बाद MBA करते हैं, तो यदि ऐसा कोई प्लान में है तो IPM देख सकते हो. ठीक है. एंड यदि आप कोई लॉ के अलावा भी ऐसा था कि अब ठीक है हमने क्लैट दिया या लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिए, इफ नॉट दिस यू आर ओपन टू ट्राई अदर कोर्सेज और अदर अदर करियर avenues देन, क्योंकि इसके एग्जाम अब जो होंगे वो होंगे मई में. सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर. So 5 IIMs in India right now are offering IPM program. I am Indore, Rohtak, Ranchi, Jammu, Bodh Gaya. Apart from that, IFT Kakinada, IFT is again Indian Institute of Foreign Trade, Delhi. उसका branch है Kakinada में, Andhra में. That's one of the premier institute of foreign trade in India. IIM Nagpur is starting a program, a 5-year IPM program. एंड निर्मा यूनिवर्सिटी जहाँ के हम लॉ की बात कर रहे थे उसका एक IPM प्रोग्राम भी काफी अच्छा है. तो इन सब जगह IPM प्रोग्राम रन करता है. ना IPM के बारे में जनरल परसेप्शन, जैसे मैंने भी आपसे पूछा कि किनका मैथ्स अच्छा है, राइट. IPM के बारे में परसेप्शन ये है कि योर मैथ्स, हायर मैथ्स आता है इसमें, ये मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए तब आप IPM दो. इज दैट एनी वन ऑफ यू हैव हर्ड लाइक दैट? Any kind of thing like that? You need to be really good at maths to crack IPM? Okay. Now, I am Indore का जो पेपर है IP मैट इंदौर, क्योंकि इन सब IIMs में सबसे अच्छा है इंदौर ही है, और इंदौर ने ही सबसे पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था. IP मैट के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं. मैथ्स के 2 होते हैं, एक जिसमें ऑप्शन होता है, एक जिसमें ऑप्शन नहीं होता है, और इंग्लिश. तो IP मैट इंदौर में सिर्फ 2 ही चीज आती है, इंग्लिश और मैथ्स. वेरएज ये बाकी सब जो पेपर है, जैसे रोहतक का अपना अलग पेपर है, जम्मू और बोध गया का अपना पेपर है जिप मैट. ठीक है, इनके पेपर में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों आती है. ठीक है. नाउ यदि हम IP मैट इंदौर के कट ऑफ की बात करें, ये एग्जाम पैटर्न है कि ऐसे मतलब सब्जेक्टिव, जहां पे नॉन MCQ. ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 30 क्वेश्चन आते हैं MCQ. ठीक है, एंड वर्बल एबिलिटी की 45 क्वेश्चन. टाइम मिलता है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स. मार्किंग स्कीम सब जहाँ पे नॉन MCQ है, यदि आपने सही किया तो +4, और यदि आपने गलत किया तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है. वेरस जहाँ पे भी MCQ है +4 -1. नाउ लुक एट द कट ऑफ फॉर 2022. जनरल का ऐसे का कट ऑफ 20 मतलब कितने सही क्वेश्चंस? आउट ऑफ 15 हाउ मेनी करेक्ट क्वेश्चंस? You need only 5 correct questions. That means 10 क्वेश्चन छेड़ने भी नहीं है. If you look at MCQ, 43 out of 30 question, your marking is +4. Out of 30, you are looking at 11 correct questions. So यहाँ पे मैथ्स में आपको IPM क्रैक करने का स्ट्रैटेजी ये है, मैथ्स का सिर्फ कट ऑफ निकालो. वर्बल एबिलिटी है जो आपका स्कोर बढ़ाता है. यहाँ पे लोग स्कोर करते हैं हाई. और ये तो मैं जनरल की उसकी बात कर रही हूँ. यदि आप कैटेगरी से हैं तो आप देखिए EWS या OBC या SC ST, look at their cutoffs way below the general category, and IPM is the next big thing after is in the undergrad space. There are a lot of IIMs which are looking to start off this program. So I'm just giving you some food for your thought. You can explore more, you can think about it. थोड़ा सा भी मैथ्स को लेके श्योर हो तो ये प्रोग्राम एक एग्जाम देने में आपका कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि what you need to understand, where is more important than what. At this point of stage,
where you all have taken 1 year for this exam. कुछ के लिए वर्क किया, कुछ के लिए नहीं किया, but that does not mean कि हम बैठ जाएं, हम आगे नहीं बढ़ना है, हमें आगे ग्रेजुएशन करना है ना, आगे और अभी एजुकेशन कंप्लीट करनी है. सो हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं, दैट शुड बी अ इंटेंशन. डोंट लेट दिस अपसेट कि यदि यहाँ क्लैट बस हमारे हिसाब से वर्क नहीं किया तो हम अब आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे या हमसे कुछ नहीं हो पाएगा. आई थिंक वो बहुत रॉन्ग माइंडसेट होगा टू इवेलुएट योरसेल्फ. ठीक है, ये एग्जाम नहीं हुआ, देयर आर मल्टीपल अदर एग्जाम्स, देयर आर मल्टीपल इन लॉ इटसेल्फ. प्लस यदि हम बीबीए, बीकॉम या अच्छी यूनिवर्सिटी, मेन चीज है अच्छे कॉलेज में जाओ, कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज मत करो. ये एक एक्सपीरियंस को, अपने आप को एक अच्छे कॉलेज में जाने से मत रोको. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो आईपी मैट आप एक बार कंसिडर करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, पढ़ो. कोई डाउट लगता है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी. Then another thing that you can look at is CUET, Common University Entrance Test. Most of you must be aware of this, that this exam has been introduced last year by government. This is conducted by NTA, National Testing Agency. And of course, the biggest attraction in CUET is Delhi University DU. DU, आप यदि अंडरग्रेड में किसी भी बच्चे से बात करोगे जो इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं देख रहा है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन देख रहा है, शायद उसके लिए सबसे बड़ी एस्पिरेशन डीयू होता है. तो डीयू हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सेंट्रल इंडिया में इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सागर की हरि सिंह गौर, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. टिस्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. लैंग्वेजेस को किसी का शौक है तो JNU. ये सब यूनिवर्सिटीज अपने सारे यूजी कोर्सेज के लिए अब CUET का स्कोर लेंगे. CUET में आपको करना क्या है, या क्या पूछा जाता है. CUET की डेट्स अनाउंस हो गई हैं 21 मई से 31 मई. तो सारे जो आप एग्जाम्स दोगे, या जो अभी आप अगले 4 महीने तैयारी करते हो, उसके बाद आपका काम बस एग्जाम देना है. पूरा मई में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स रहेंगे. सो जो सिलेबस है इसका, वो क्लास 12 NCERT के बेसिस पे है. एंड 3 सेक्शंस रहते हैं इसमें. सेक्शन 1 इज इंग्लिश. तो इंग्लिश आपका क्लैट के लिए जो आपने प्रिपेयर किया है, या जो अब अगले 3 महीने आप नॉन क्लैट के लिए करते हो, योर इंग्लिश इज ऑलरेडी डन, सॉर्टेड. GAT is again what we are going to do in the non-CLAT classes. Your maths and reasoning, logical reasoning, that's again been done. What you need to work upon is your domain subjects. Domain subjects वो हैं जो आपने class 12 में पढ़े हो. If you were a commerce student, then probably your domain are economics, BST and accounts. Humanities तो depend करेगा क्या combination लिया है. Science तो PCM, physics, chemistry and maths. Okay. सो ये 3 चीजें पूछी जाती हैं. एंड यदि जैसे BHU में 5 year लॉ है, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इससे मुझे सिर्फ BA BCom में ही एडमिशन मिलेगा. देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज विद इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो 5 year लॉ भी ऑफर करते हैं. तो 5 year लॉ जो यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं, वो आपका इंग्लिश का स्कोर देखते हैं, इंग्लिश कंपलसरी है. GAT का स्कोर देखते हैं, एंड लीगल स्टडीज देना कंपलसरी होता है. ठीक है. अब लीगल स्टडीज आपके पास 12th में नहीं भी था तो भी आप पढ़ सकते हो. NCERT बुक रेफरेंस है, जितना आपने क्लैट के लिए पढ़ा है वो काफी है. एंड इनफैक्ट वी वुड बी डूइंग लीगल स्टडीज क्लासेस इन अप्रैल. बस क्लास NCERT की बुक्स नेट पे अवेलेबल है, PDF डाउनलोड करो. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ वो है जो आप काफी कुछ पढ़ चुके हो. बट ये एक काफी अच्छा ऑप्शन बना सकते हो अपने लिए, क्योंकि देखो अभी कोई भी कॉलेज में जाओगे जुलाई से पहले शुरू नहीं होगा. तो व्हाई नॉट यूज दिस टाइम टू क्रिएट सम मोर ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ. सो दैट इज व्हाट वी वांटेड टू टॉक अबाउट, कि ये एक अपसेट को या एक सेटबैक को अपने आप को डिफाइन मत करने दो. हो सकता है कई आप में से घर पे थोड़ा सा हुआ हो कि गए और कुछ नहीं हुआ, या आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया हो अपने आप से पर वैसा नहीं हुआ. डजंट मैटर. दिस इज नॉट गोइंग टू डिफाइन यू फॉर लाइफ. ओके. So remember, you're not done yet. There are a lot of things to be done. There are a lot of choices that you can create yourself. This is what I wanted to put forward, because आप में से काफी लोग
से बात नहीं हो पा रही थी, और ना ही आप एज एन इंटरेक्शन नहीं हो पाया। और क्लैट का रिजल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड आया, वी वर नॉट हियर, एंड बट स्टिल to feel free to discuss about what options you want to pursue. And abhi bhi it's not over yet. Still a lot of things are being left, a lot of options being there. Work on that. Don't go back to by joining a normal graduation and degree का course. वो aspiration लेके तुम नहीं आए थे यहाँ पे, या वो आप ऑलरेडी आपने जब क्लैट के लिए सोचा, आई थिंक आप और एक स्टेप आगे मूव कर चुके थे एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का। तो उस चीज को आप वहां पे ड्रॉप मत करो, ठीक है? उसको और आगे बिल्ड अपॉन कर सकते हैं। सो बट उसके लिए थोड़ा सा आपका आपकी तरफ से इनपुट चाहिए कि आपके क्या कंसर्न्स हैं, आप क्या सोच रहे हो। यू नीड टू कम एंड कम्युनिकेट विद अस। एंड नॉन क्लैट क्लासेस जो है वो 5 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो। आई थिंक बहुत पहले ही मैंने ग्रुप में कम्युनिकेट कर दिया था, एंड आई मेंशन्ड कि जिसको भी घर होकर होकर आना है आ जाए। सो थिंग्स देर आर फ्यू पीपल दोज whom I know कि जिनको लगता है सब खत्म, बट ऐसा नहीं है। आई जितने मैंने कॉलेजेस की बात की है, चाहे यूपीएस हो, चाहे नारसी मौजी हो, निर्मा हो, सिम्बी है, देन आपका बीवीपी हो, नेम एनी कॉलेज, जीएलसी हो, आईएलएस हो, नेम एनी कॉलेज, आई हैव स्टूडेंट्स देयर, क्राइस्ट हो, ठीक है, स्टूडेंट्स देयर, एंड दे आर फेयरली सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, ठीक है? कोई भी कॉलेज परफेक्टली परफेक्ट कुछ नहीं होता है, हर कॉलेज के कुछ फ्लॉज होंगे। यदि तुम किसी ये प्रोबेबली यहाँ पे किसी लॉ यूनिवर्सिटी के भी बच्चे से बातें करोगे तो वो भी तुमको 10 चीजें गिना देगा। तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं है। मैं शुरू से मेंटेन कर रही हूँ कि कॉलेज तुम्हारी लाइफ की सक्सेस गारंटी नहीं है, तुम हो। तुम किसी भी कॉलेज में जाओ और वहां पे अच्छा करोगे, अपने आप को टॉप 10 टॉप 20 के ब्रैकेट में रखते हो, अपने एकेडमिक सॉर्टेड रखते हो, ठीक है, तुम डेफिनेटली सक्सीड करोगे लाइफ में। और तुम टॉप के कॉलेज में भी पहुंच जाओ और कुछ नहीं करो तो वो भी नहीं बचा पाएगा। तो अब जो चॉइसेस हैं आपके सामने, उनमें से एक अच्छा कॉलेज चुनो, इंश्योर करो कि तुम वहां पे अच्छे से वो 5 साल परफॉर्म करो। फिर चाहे जॉब्स हो, चाहे लिटिगेशन हो, आई डोंट थिंक कोई भी चीज तुम्हें सक्सीड करने से रोकेगी। काम तो अभी शुरू हुआ है, कॉलेज में जाने के बाद और काम होगा, ठीक है? सो ऑल्सो वांटेड टू इन्फॉर्म दैट जिनका एडमिशन क्लैट बुलेट में हुआ है उन लोग को री रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द नॉन क्लैट क्लासेस। जिनका एडमिशन एलएसटी बुलेट में है उनका थ्रू आउट मई तक था। तो जिनका भी क्लैट बुलेट है, आगे चल के नॉन क्लैट में क्लासेस में कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो एक बार अभिजीत सर से कनेक्ट कर ले। एंड परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब का क्लासेस का टाइमिंग कल आ जाएगा ग्रुप में। तो आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू देयर, मोस्ट ऑफ यू देयर, ठीक है? क्योंकि एज आई सेड इट्स नॉट over yet, there are a lot of things to look forward. Yes, that's all from my side. Any query, any concern, anything?